Have you ever entered a room only to feel invisible? Hi, my name is Kritika Rajput, and today I'm going to share 6 points to boost your confidence and to gain your power. So let's begin. Our body speaks before we do. इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा पॉस्चर मेंटेन करें। जब भी हम किसी रूम में एंटर होते हैं, अगर हमारी बॉडी बहुत ही हम्पी और बहुत ही स्मॉल फील कर रही है, दैट इज़ अ डायरेक्ट इंडिकेशन कि वी लैक कॉन्फिडेंस। This not only boosts your confidence in the room, but also brings an aura with you, which directly demands respect. इसलिए एक अच्छा posture respect के equivalent होता है. It makes you feel relevant, it makes you feel powerful, it makes you feel seen and heard. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी भी रूम में या किसी भी गैदरिंग में एंटर हो तो यू मेंटेन दैट कॉन्फिडेंस, दैट पोस्चर विद इन यू टू really get the respect and importance which you are seeking. So number one rule for confidence is a posture, a beautiful confident posture. Never overboard anything that does not look natural और इसलिए वो confident नहीं लगता, वो overconfident लगता है. There's a fine line between looking confident and looking overconfident. So do not overboard any posture in your body. Move as a power queen. Move with all the desires and purpose. Practice posture every now and then. It is very important. Because जब भी आप posture practice करेंगे, you will gain confidence and also it will come naturally to you. So always beware of your posture. Sitting, standing, laying down. Do not hump your body. Move with a purpose. वो आपको ultimate confidence की तरफ लेके जाएगा and will shift your mindset as well. You'll feel powerful in and out. अपने पूरे दिन में हम सबसे ज़्यादा बातें खुद से करते हैं, इसलिए क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं कि हम खुद से पॉजिटिव बातें करें? Yes, ladies, हमें पता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ups and downs से गुजरते हैं, but that is life, isn't it? Only motto that I carry with me every single day is being kind to myself. मैं highlight करना चाहती हूँ ये portion to all the ladies out there. Be kind to yourself. Treat yourself as your kid, as your baby. I know कि कभी कभार हमारी लाइफ में इतना कुछ ऊपर नीचे अप एंड डाउन चल रहा होता है, हम बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं कि हमारा बिल्कुल मन नहीं करता कि हम अपने दिन की शुरुआत करें या हम बिल्कुल पॉजिटिव फील नहीं करते. वेल, दिस इज़ द टाइम जो आपको अपने पुराने कल से एक नए कल की तरफ लेकर जाता है. तो मैं आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी शेयर करना चाहती हूँ जिसने मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया है कॉन्फिडेंस गेन करने में. गेट योरसेल्फ अप. I know थोड़ी सी मुश्किल होगी, but please do it regularly and you will see the difference. Get yourself up, go to the mirror and अपने आप से कम 5 से 6 positive lines हर रोज बोलें. जैसे कि I love who I am. I love who I am becoming. I am blessed and protected. All good things come to me naturally and easily. I am a positive person. I am a good person. जब भी आप ये 5 से 6 लाइनें रोजाना खुद को बताएंगी, it will start changing your perspective towards life and also give you some confidence to start your day and to start a new journey. सुबह सुबह अगर सब कुछ प्लान्ड हो कि क्या पहनना है, क्या करना है, क्या खाना है, तो कितना आसान और कितना स्मूथ फील होता है ना. Whenever you become more organized with your day, you feel more confident and that is automatic. So इसीलिए take out 5 to 10 minutes before sleeping to just plan कि कल क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या लंच बनाना है, क्या ब्रेकफास्ट बनाना है. Also mark all the important things that you have to do. तो इसीलिए I want all of you ladies to start this practice from today or tonight to write down all the things that you need to do the next day. और अगर आपको एक फ्री प्रिंटेबल टू डू लिस्ट चाहिए तो I'll link it in the description box for you. You can download it for free. This will not only make you organized, this will also boost your confidence क्योंकि आपको पता होगा exactly पूरे दिन में करना क्या है. बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि पहला स्टेप लेने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना ज़रूरी है. हम सब वही सोचते हैं. एंड डू यू रियलाइज हमने कितने साल बर्बाद कर दिए सिर्फ ये सोचते हुए कि कल स्टार्ट करेंगे, परसों स्टार्ट करेंगे, तब स्टार्ट करेंगे जब सिचुएशंस हमारे हिसाब से होंगी. तो इसीलिए कभी भी परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार मत करिए. सभी सक्सेसफुल लोगों ने अपनी शुरुआत परफेक्ट टाइमिंग से नहीं पर विल ऑफ टेकिंग रिस्क से की. इसीलिए लेडीज़, आई रियली वांट
कि आप इतना खूबसूरत काम करती हैं, आपके पास इतना पोटेंशियल है. प्लीज़ स्टार्ट using and utilizing and exploring your potentials. You are not here to be the caretakers of your potential, but to be the investors of them. So please ladies, अपना potential बर्बाद मत कीजिए, अपना first step लीजिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए comfort zone से बाहर निकलें. Comfort zone is a poison that kills your dreams. जैसे आप कोई क्लासेस लेना चाहती हैं, go for it. एटलीस्ट पूछ कर आएँ उनके बारे में. अगर आप कुछ ड्राइंग या पेंटिंग की क्लासेस लेना चाहती हैं, प्लीज़ डू दैट. इफ़ यू वांट टू मेक अ यूट्यूब वीडियो लाइक मी, just start, because I started quite late and I always feel like शायद मुझे पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए था, but anyways, दुर्घटना से देर भली. So always start off and kick start जो भी आप करना चाहते हैं. There is very less time, believe me. हमारे पास बहुत सारा समय नहीं होता, इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और do what you really want to do. भी आप कहीं बाहर जाते हैं, किन्हीं से भी बात करते हैं, किसी भी ग्रुप से इंटरेक्ट करते हैं, इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप अपने आप को अप टू डेट रखें, ना कि सिर्फ जनरल नॉलेज में, बट ऑल्सो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. ये सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं देगा, बट विल ऑल्सो गिव अदर्स अ पर्सपेक्टिव दैट यू आर क्वाइट इंटेलेक्चुअल. इंटेलेक्चुअल होना कॉन्फिडेंस की दूसरी निशानी है. जब इंसान इंटेलेक्चुअल होता है, उसके पास बातें हैं करने को, तो आप कभी भी लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे. इसलिए ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर नॉलेज. नॉलेज डज नॉट मीन कि आप बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज लें या फिर आप साइंटिस्ट बने. इट सिंपली मीन्स बीइंग अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, ऑफ योर वर्ल्ड, हैव फ्लेक्सिबल ओपिनियंस रिगार्डिंग थिंग्स अराउंड यू, एंड यू विल सी कि आपके आसपास के लोग आपको ज़्यादा वैल्यू करने लगेंगे. प्लीज़ हैव अ टारगेट ग्रुप. Do not just sit with people who do not serve your purpose. उन लोगों के साथ बैठे जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ आप एडमायर करती हैं. Do not sit with any kind of people जो सिर्फ आपको रन डाउन कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंस हिंडर कर रहे हैं. Select your people and educate yourself accordingly. जर्नलिंग सिर्फ एक लिखने का प्रोसेस नहीं है, ये एक तरीका है खुद को रिमाइंड करने का हमारी सारी ब्यूटीफुल और पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में. हमारी छोटी से बड़ी सब अचीवमेंट्स के बारे में खुद को रियलाइज़ करवाने का तरीका है जर्नलिंग. लेट मी टेल यू, जर्नलिंग हैज़ हेल्प मी अ लॉट. स्मॉल लिटिल डायरी होती है जो बहुत पर्सनल होती है हर एक के. जब आप लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन से गुजर रहे होते हैं, तो बिलीव मी, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज़ करने में और माइंड करवाने में बहुत हेल्प करती है. इसीलिए आज से मैं आपको कहूँगी कि अपने सोने से टू डू लिस्ट बनाने के बाद जस्ट राइट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल. To write a gratitude journal just include small little achievements of the day. आज आपको क्या करके अच्छा लगा, आज आपने क्या नया सीखा, आप किन से मिले और किन से मिलके आपको अच्छा लगा, आपने आज क्या अचीव किया. हम इन सबको बहुत छोटी चीज़ें समझ सकते हैं, पर नो, ये चीज़ें हमें उस वक्त काम आती हैं जब हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता खुद को मोटिवेट करने का. जब भी आप जर्नलिंग करें, इसे दिल से करें. ऑलवेज फील वाइल यूर राइटिंग इट. राइटिंग में एक ऐसी पावर है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को विद इमोशंस लिखते हैं, चाहे वो एक लेटर हो, डायरी हो या फिर जर्नलिंग हो, इट ऑलवेज कम्स टू लाइफ. वो इमोशंस आपकी राइटिंग में बस जाते हैं और वो राइटिंग जब भी आप पढ़ते हैं तो वो इमोशंस आपके थ्रू रन करते हैं, एंड दैट इज़ साइकोलॉजिकल. So please train your mind to find good in things, and especially find good in yourself, and write it down. This is a very, very effective habit if you are going through anything, any kind of loss or any kind of low phase in your life. This has helped me a lot to achieve all my dreams and my confidence back in life. I hope you like this video, and if you want part 2 for that, I would love to create a part 2. And अगर आपके पास कुछ और points हैं जिसने आपको अपने confidence को boost करने में help की है, तो please do write them in the comment section below. I would love to read them. क्या पता आपके words किस पे क्या impact कर जाएं. इसलिए let's make a happy, healthy world जहाँ हम एक दूसरे का सहारा बने and increase the community for good. See you in the next video. तब तक के लिए bye bye.